Classified based upon manner and material by which bones are united is fibrous joint. फर्स्ट वन जो पढ़ा था अपन ने, जिसमें पढ़ा था क्या 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 पढ़ा था इसके अंदर अपन ने? फाइब्रस जॉइंट, नॉन मूवेबल, और सब टाइप किया था इसमें सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस एंड सूचर्स. देन कार्टिलेजिनस में स्लाइटली मूवेबल में क्या पढ़ा था? सब टाइप क्या होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी. एंड साइनोविल में freely movable. The joints are united between the two hormone bone and rigid part of the skeleton. They exhibit a variety of forms and functions. They are classified according to the type of material by which the articular bones are united, and then can be also classified according to mobility. That is movability. This type differ in the manner of material by which the joint is made. Freely movable, synovial joint are, as you know very well, freely movable. Most of our मूवेबल हैपन एट साइनेबल जॉइंट. एज यू नो वेरी वेल कि साइनेबल जॉइंट जो है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है. हाउएवर द अदर पैटर्न परफॉर्म ए नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. नाउ द फाइब्रस जॉइंट, द आर्टिकुलर बोन्स आर यूनाइटेड विद फाइब्रस टिश्यू. किससे जुड़ेगा आपका? फाइब्रस टिश्यू से. दैट इज बताया था मैंने आपको, फाइब्रस लिगामेंट या फाइब्रस टिश्यू से बना होता है. द अमाउंट ऑफ मूवमेंट एट दिस जॉइंट डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द फाइब्रस यूनाइटिंग द आर्टिकुलर सर्फेसेस. ठीक है, एक पॉइंट आप ये और लिख सकते हैं फाइब्रस जॉइंट में. द अमाउंट ऑफ द मूवमेंट एट दिस फाइब्रस जॉइंट डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द फाइबर्स यूनाइटिंग द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस. एंड द एग्जांपल इज क्रेनियम. एज यू नो वेरी वेल, क्रेनियम बताई था मैंने आपको. सजेटल सूचर, कोरोनल सूचर, टेम्पोरल सूचर, मस्टर्ड सूचर, लेम्डोइड सूचर. Now these are the example, as you know very well, where the sagittal sutures, here are the sagittal sutures, this one your coronal suture, and behind you have lambdoid suture. This one is your temporal या lateral suture. You can see a plain joint here, nasal bone. Now the fibrous joint can be divided into two subtypes. As you know very well, syndesmosis बात की थी अपन ने. Unite the bone with a sheet of fibrous tissue, either ligament or fibrous membrane. This type is partially movable. The interosseous membrane between the radius and ulna is example जो बताया था मैंने आपको. रेडियस अल्ना के अंदर जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है और इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, दो बताया था एग्जाम्पल मैंने आपको ना, तो वहाँ मिलेंगे आपको. आर्टिकुलेट बिटवीन द रूट ऑफ द टूथ एंड द एल्वेओलर प्रोसेस, गोम्फोसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर. इज कॉल्ड गोम्फोसिस और सॉकेट. मोबिलिटी एट दिस जॉइंट इंडिकेट पैथोलॉजिकल स्टेट अफेक्टिंग द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द टूथ. सो नॉर्मली इट इज इमूवेबल, जो पढ़ाई था अपने. हाउएवर मूवमेंट इज रिलेटेड प्रोप्रायोसेप्शन. थोड़े बहुत सबके दांत हिलते ही नॉर्मली, है ना. Now you can see how the teeth in socket. This one is socket and teeth is on
example. Now, regarding one fibrous cartilaginous joint, these are united by hyaline and fibrocartilage and can be divided into two types, primary and secondary. Synchondriosis is primary. Write down the other name of primary cartilaginous joint. Synchondriosis, and secondary is symphysial joint. Now, write down the other name of primary and secondary joint. Cartilaginous joint. Primary is synchondriosis and secondary is symphysis. या symphysial या synchondriosis joint. Now, in synchondriosis, the bones are joined by hyaline cartilage. Hyaline cartilage permits slightly bending during earlier life, and primary cartilage joint are usually temporary. बताया था मैंने आपको temporary in nature. Example is epiphyseal plate of cartilage, है ना? There is growing plate in a long bone, है ना? Now, what is symphysial joint? A strong, slight, movable joint. They are united by fibrocartilage. Their example is intervertebral disc. They provide the strength and shock absorber as well as considerable flexibility to the vertebral column. Write down the last point, fourth one point. The example is intervertebral disc, and what is the function? Is provide the strength and shock absorber as well as considerable flexibility to the vertebral column. Huh? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अपन जॉइंट की बात कर रहे हैं, फ्लूइड कहाँ से आ गया? क्या? वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अपन जब अपन पढ़ेंगे अपन. You can see that example of primary cartilaginous joint. You see in a first diagram epiphyseal plate of hyaline cartilage. First diagram देखो, ये वाला है. First and second. First costo and sternocostal joint. Just write down another example of primary cartilaginous joint is first sternocostal joint. And in secondary cartilaginous joint, example is intervertebral bliss, fibrous pubic symphysis, manubrio-sternal joint जो बताई था मेरे आपको.
ठीक है, तो ये एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है, बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। मैंने मैंने भैया बोले उसमें मैं इस तरह से एंगल बनाऊँ, एक तो स्ट्रेट जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, एंगल ऑफ लुइस now the synovial joint. These are the most commonest type of joint and presenting in most of your body, and is freely movable joint. And these joints are for the locomotions, typical in your limbs joint. जितने भी limbs हैं आपका upper limb lower limb जितने भी joint हैं, these are all are synovial joint. Now you can see the diagram of the synovial joint. You can see the fibrous capsule, joint capsule, joint cavity. Within the joint cavity, there is a synovial fluid is there. Then you have articular cartilage on the margin of articular surfaces. You can see the last point, characteristic feature is presence of joint cavity containing the synovial fluid, and joint cavity lined by fibrous capsules and synovial membrane. है ना? These are reinforced by accessory ligament. You can see here in different joint in which you have accessory ligament which are separated or thickening of joint capsule. That is extrinsic ligament. Accessory ligament are two types: extrinsic or intrinsic. Extrinsic is outside the joint cavity, and intrinsic within the joint cavity. Basically, it is a thickening of joint capsule. They also contain fibrocartilage articular disc. कहीं कहीं आपके जॉइंट में जो है आपको क्या मिलेगी, हाइलिन कार्टिलेज के साथ साथ फाइब्रोकार्टिलेजेस की डिस्क भी मिलेगी आपको. ठीक है ना? कौन कौन से बताऊंगा अभी. दे आर कॉल्ड मेनिस्कस. मेनिस्कस कहाँ मिलते हैं? नी जॉइंट. नी जॉइंट ना, अब बोलते प्लेट घिस गई है, नॉर्मली बोलते हैं अपन प्लेट घिस गई है, वो प्लेट यही मेनिस्कस ही है, लैटरल एंड मिडिल मेनिस्कस. बेसिकली दीज आर फॉर्म बाय फाइब्रोकार्टिलेज. What are the types of synovial joint? There are 6 major types of synovial joint are classified according to the shape, articular surface, and the type of movement they permit. Basically, the synovial joint is subdivided by 2 points according to the shape of articular surfaces and movement they are permit. These are the plane joint, hinge joint, saddle joint, condyle joint, ball and socket variety joint. एक missing है ellipsoid joint. Now the plane joint, they are non-axial. They permit gliding and sliding movement in the plane of articular surfaces. They oppose the surfaces are flat or most relatively flat. Movement is limited by their tight joint capsule. एग्जाम्पल लिखते हैं इसका एक और आप. एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, ये कहाँ होता है बॉडी में? एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट कहाँ होता है? ये तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है. स्टर्नोक्लेविकुलर बैक में कहाँ जाएगा? ये जो बता रहा है आप, ये वाला, ये जो क्लेविकल जा रही है आपकी, वो आर्टिकुलेट कर रही है आपकी एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला से. You can see the diagram. Acromion process and acromioclavicular joint. This one. You can see the clavicle, scapula, and humerus. How it is articulated and forming the shoulder joint. This one is your shoulder joint. Glenohumeral joint. Another name is shoulder joint. Another name is glenohumeral joint. Now the hinge joint permit flexion extension and transfer axis
and the joint capsule are thin. Now you can see the joint, the plane joint already discussed. Hinge joint, uniaxial, one axis on transverse for flexion extension, and the best example is humeroulnar या elbow joint. You can see in the diagram. And pivot joint, as you know very well, बताया था मैंने आपको, atlas between the atlas and axis, median atlantoaxial joint. You can see the last example is median atlantoaxial joint. ये पढ़ ही चुके हैं अपन. Now how is articulated the elbow joint? There is an interosseous membrane between the radius and ulna, and this one is the wrist joint, example of ellipsoid joint. Now the saddle joint permit abduction, adduction, flexion and extension. Biaxial movement occurs in sagittal and frontal plane. This is a first carpo-metacarpal joint at the thumb. ये बताया था मैंने आपको ये वाला, है ना? Flexion, extension, abduction, adduction, medial rotation and lateral rotation. Now the condyle joint permit again flexion, extension, abduction, adduction, biaxial. And example is metacarpo. Yes, write down the example of condylar joint is a metacarpophalangeal joint. Is known as MP joint बोलते हैं normally हम इसको MP joint. पाइवट जॉइंट अगेन यूनिएक्सियल है, मीडियन अटलांटोएक्सियल जॉइंट पढ़ा अभी अपन ने. बॉल एंड सॉकेट एज यू नो वेरी वेल, पता ही है आपको सब. ऑल द मूवमेंट अकर्स एट द बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ जॉइंट, है ना. मल्टी एक्सियल जॉइंट है ये ध्यान रखें आप. इट इज़ अ मल्टी एक्सियल जॉइंट एंड मूवमेंट अकर ऑल अराउंड द एक्सिस. एग्जाम्पल इज हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट. Now you can see here the whole diagram showing the different type and movement of the joint by mechanical model. Plane joint, acromicro joint, then atlantoaxial joint, elbow joint, condylar, saddle and ball and socket. You can see like a piston, ball and socket. चलो ये एंड हो गया ये वाली तो. Now what is cartilage? एज यू नो वेरी वेल बताया था मैंने आपको. फर्म लाइक जले लाइक मैट्रिक्स बताई थी, तो वो दो तरह की है. देखो आप, टेरिटोरियल और इंटर टेरिटोरियल. टेरिटोरियल इज न्यूरी ग्राउंड सब्सटेंस एंड इंटर टेरिटोरियल विद इन द टेरिटोरियल मैट्रिक्स. This is the question asked in your exam. What is intertellurial matrix and what is territorial matrix? Write down this slide. A territorial matrix is a newly formed matrix, ground substance without fiber, which immediately surrounded the chondrocytes
It is more basophilic, it is stained darker, and it is less, and the interterritorial is within the territorial matrix, which contain the mature chondrocytes. It is an old matrix which is less basophilic, that's why it is stained lighter. क्या हो गया? अभी दिखाएं अभी तक? सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं. टेरिटोरियल इज यूनिफॉर्म, सराउंडेड बाय chondrocytes, and basophilic dark stain. 4 लाइन लिखनी है. Then this one is lighter stain within the territorial matrix and containing mature chondrocytes. क्या बोल रहा हो? पहले हंस रहा है. Now, what are the tissues present in the which cartilage present in the tissue? Trachea, in which you have hyaline cartilage and nasal cartilage, you know very well. Articular cartilage, as you know, पता ही था मैंने आपको. Thyroid cartilage, again hyaline cartilage. Basal part of erythroid cartilage, that is cartilage of larynx. Basal part of erythroid cartilage is cartilage of larynx. Then you have external ear, pinna, as you know very well, elastin cartilage. And then pharyngotympanic tube. Yes, what is pharyngotympanic tube? Eustachian tube, है ना? उसी का नाम है pharyngotympanic tube. Corniculate cartilage, again cartilage of larynx. Intervertebral disc, as you know, fibrocartilage, bronchus, hyaline, costal, hyaline, and epiphyseal plate of cartilage, again hyaline. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें. कहाँ कौन कौन से कार्टिलेज है. अगेन आएगी स्लाइड आपकी. क्रिकोड कार्टिलेज, अगेन कार्टिलेज ऑफ trachea, hyaline, epiglottis, as you know very well, external acoustic meatus, apical part of erythroid, again cartilage of larynx, cuneiform, again larynx. Yes, articular disc of joint, which is a fibrocartilage. Tunica media of artery, again elastin. And insertion of tendon and ligament, again fibrocartilage. Glenoid and acetabular labrum. Yes, where is the glenoid cartilage present? Last one, glenoid and acetabulum. Acetabular.
Yes, in the shoulder you have glenoid labrum, glenoid labrum है, glenoid fibrocartilage. और acetabulum वो एक शोल्डर में, दूसरा कहाँ होगा? हिप जॉइंट में. दोनों बॉल एंड सॉकेट वैरायटी जॉइंट है आपके, तो दोनों के अंदर आपके क्या है? फाइब्रोकार्टिलेज की एक रिम है ना, फाइब्रोकार्टिलेज की. बिकॉज दीज आर freely movable joint. Movement occur in on the axis. Now the hyaline cartilage appears homogeneous because the collagen fibers present in the matrix have the same reflected index and that of the ground substance. एक जैसे दिखते हैं, ground substance and collagen fiber. अभी बताऊंगा मैं क्या है इसका. Function to support the hold the body together, provide support and flexibility of different part of the body. As you seen in all the joint, your limb joint, these are all your freely movable joint. You can see it provide the support and flexibility to the joint, है ना. तो जो भी आपके जितने भी joint है आपके limb में, जो freely movable है, जिनको support कर रहे हैं, वो flexibility provide कर रही है. कौन? hyaline cartilage. ठीक है. ठीक है, highly basophilic है. ठीक है, isogenic pericardium external hyaline cartilage. चलो, you can see the diagram. It's a diagram of trachea. Histology diagram है. Basically, this one is histological diagram. You can see here. This one is your perichondrium here, and in which you present your chondrocytes. This one cells, and this one in the center of chondrocyte there is a nucleus presenting. You can see here nucleus are bi, multi, and scattered. These are not arranged in a parallel or vertical or horizontal lining. These are scattered and binucleated, trinucleated या multinucleated. ठीक है, chondrocytes आपको ऐसे मिल रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, और which is embedded in this one is क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये सारा this is a matrix, है ना. Now the elastic cartilage distribution आप बता ही दिया था कहाँ कहाँ मिलेगा आपको. Now it provide the resistance to stage force. इलास्टिन है तो पता ही है. The elastic fiber present in the matrix. The elastic fibers are thinner and at the periphery and thicker at the branching in the interior of cartilage. Larger chondrocytes in the lacuna are more prevalent in the inner of the plate. The smaller and flatter chondrocytes are located peripherally. तो larger वाले कहाँ मिलेंगे आपको? inner side मिलेंगे, और smaller वाले कहाँ मिलेंगे? chondrocytes आपको बाहर मिलेंगे. You can see here the diagram. Again, the nucleus. Basically, in the elastin cartilage, the collagen fibers is more than the chondrocytes. ठीक है ना. बेसिक थिंग ये है कि आपके कोलेजन फाइबर्स जो है वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स की जगह. ना द फाइब्रोकार्टिलेज डिस्ट्रीब्यूशन पता ही आपको कहाँ मिलेगा. इंटरवर्टिब्रल डिस्क पढ़ा ही था आपने. नाउ द हेल्पिंग इन द फॉर्मिंग द जॉइंट yet allowing the reasonable degree of movement. As you know, glenoid and acetabulum increase the stability of joint. क्यों है वो? क्योंकि वो इंक्रीज कर जॉइंट कैविटी को की डेप्थ को इंक्रीज कर रहे हैं. एंड आर्टिकुलर डिस्क प्रोवाइड द स्मूथ लुब्रिकेंट सरफेस ऑफ लो फ्रिक्शन आर्टिकुलेशन, जिससे आपका फ्रिक्शन कम हो, है ना. आर्टिकुलर डिस्क कर रही है, स्मूथ एंड लुब्रिकेंट सरफेस प्रोवाइड कर रही है ताकि आपका फ्रिक्शन जो मिनिमाइज हो. Dense bundle of collagen fibers are oriented in the direction of function, stays and arrow of chondrocyte between the collagen bundle, and chondrocytes are present in lacuna and usually distributed in a row with fibrous cartilage matrix rather than a random. ठीक है, छोड़ो इसको. तो see the diagram. Yes. You can see here. These are arranged in a parallel row. Somewhat पूरा नहीं है लेकिन scattered नहीं है. And these are the you can see is arranged in a uninuclear line, parallel line. कोई आपका जो है वो बाइन्यूक्लिएटेड, ट्राइन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं है इसके अंदर, है ना. तो ये चीज़ ध्यान रखें आप कि अरेंज इन पैरेलल रो. नाउ व्हाट आर द फंक्शन? राइट फंक्शन लिख लो भले आप एक बार लिखना चाहो तो. सपोर्ट
Gliding surface, provide the gliding surface for facilitating the movement. Only hyaline cartilage, essential for growth of bone, and allow the tissue to bear mechanical stage without permanent distortion. ठीक है, तो ये आपका है कार्टिलेज के बारे में। और तो इसमें कुछ ज़रा है नहीं, कंटेन ऑफ वर्टिब्रल कैनाल नहीं, डायफ्राम। चलो इसमें देखते हैं क्या है डायफ्राम में। और ये तो मेरी है। डायफ्राम पता है आपको? थोरिक को एब्डोमिनल डायफ्राम। डायग्राम बताता हूँ आपको क्या क्या होता है। Now you can see the diagram of diaphragm, how it is separated the thoracic cavity above and abdominal cavity below. These are the openings of diaphragm. You can see here. This one is esophageal opening. Esophagus जा रहा है आपका ऊपर से, तो यहाँ ओपन हो रहा है। फिर इन्फीरियर वीना केवा जो यहाँ नीचे से ऊपर आ रहा है, तो उसकी ओपनिंग है डायफ्राम में। और पीछे की तरफ देखो एयोटा, पीछे एयोटा आपका ओपन है ना, थोड़ी सी आर्च ऑफ एयोटा, थोड़ी सी एयोटा और एब्डोमिनल एयोटा। तो जो एब्डोमिन में जा रहा है तो वो इस ओपनिंग से के थ्रू होकर जा रहा है। तो दिस आर द थ्री ओपनिंग, मेजर ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। दिस इज द इसोफेजियल ओपनिंग, दिस इज द वीना केवल ओपनिंग, दिस वन इज एयोटिक ओपनिंग। तो थ्री मेजर ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। You can see the vena cava, esophageal and aortic. These are three opening. बाकी तो वहाँ पे काम का नहीं है। ये एक और डायग्राम है, देखो आप, लेकिन सेंट्रल टेंडन में मिलेगी आपको वीना केवल ओपनिंग, और सेंट्रल टेंडन के जस्ट पीछे मिलेगी इसोफेजियल, और सबसे पीछे पीछे मिलेगी आपको द aortic ओपनिंग along with thoracic duct. Now the skeleton again, as you know very well, जो आप देखा ही आपने, the bony tissue make up about 18% of your total human body weight. The skeletal system support and protect the body weight while give it shape and forms. And osteology, it is a branch of science that deals with the study of skeletal system and their structure and function. Composed of bones, cartilage, joint and ligament, as you know very well.
What are the functions? Support, protective, movement, storage, and blood cell formation. Yeah, division is depending upon two axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton contain skull bone, auditory ossicles, hyoid bone, ribs, sternum, and bones of vertebral column. है ना, ये तो सब पढ़ा ही था अपन ने. And appendicular consists of upper and lower extremities plus bone in the form pectoral and pelvic girdles which connect the limb to the axial skeleton. है ना? I can see in axial skeleton ribs, skull, ear ossicle, hyoid bone, sternum and vertebral column. And in second hand you can see your shoulder girdle, pelvic girdle and arm and hand. Now how the bone is the form 206 जो बात कर रहा था बता रहा था मैं आपको. तो you can see here axial skeleton consists of 80 bone and appendicular bone consists of 126, in which in upper limb you have 64 and lower limb you have 62 in both, है ना, both the upper limb 64, that is 62 and 32 32, and lower limb 31 31 62. Just 8 cranial or face 14. Have you enumerated the facial bone? Facial bone कौन कौन सी है 14? ईयर तो उसमें आ जाएगी, अलग से आएगी, देखो अलग से लिखी हुई है 6. ये वो cranial bone है. पैलेट गुड, वो मंडिबल ही है, अटैच नहीं कुछ. लैक्राइमल, यस लैक्राइमल बोन, zygomatic bone. एक ही बची हुई है, एक ही. inferior nasal concha. inferior nasal concha कहाँ होता है ये? नेजल है तो नोज में होगा, बस ठीक है. Now the classification of based on the shape, how the bone is classified is long bone, short bone, flat bone, irregular bone, sesame bone. You can see in the diagram, long bone, humerus, short bone, trapezoid, wrist bone, this is carpal bone, flat bone, as you know, sternum, irregular is the vertebra, and sesamoid bone, patella. तो अब बताएं मुझे आपके what is sesamoid bone? कप लाइक, पटेला है तो कप लाइक, तेरी पटेला कप लाइक है देख. हाँ, डेवलप फ्रॉम मसल tendon, डेवलप आफ्टर द बर्थ. देयर इज नो पेरियोस्टियम, है ना, जैसे बोलते हैं ना पेरियोस्टियम, कवरिंग ऑफ बोन इज पेरियोस्टियम, बट लाइक इन सेसामाइड बोन देयर इज नो पेरियोस्टियम. आफ्टर बर्थ तो बोला है मैंने, डेवलप, मैंने नहीं तो बोला डेवलप आफ्टर द बर्थ.
ओसिफाइड का मतलब ये तो होता है डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन। अगर कभी चांस मिले आपको न्यू बोन बेबी देखने का चांस मिले तो आप देखना, फील करना, उस पटेला नहीं मिलेगी आपको उसके अंदर। राउंड अबाउट 6 मंथ में वो ग्रो कर जाएगी, वो बन जाएगी, मतलब डेवलप तो नहीं होगी बट फॉर्मेशन हो चुका होगा उसका। बट कभी चांस मिले अगर आपको कभी तो देखना हो जाएगा कहीं न्यू बॉर्न बेबी को, उसके अंदर पटेला नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखना। ये पटेला आफ्टर बर्थ होती है, सिसामेड बोन है, आफ्टर द बर्थ है, मसल्स टेंडन में डेवलप होती है। और फंक्शन क्या है अगेन, टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ मसल्स पुल, दैट इज मिनिमाइज द फ्रिक्शन एट पर्टिकुलर जॉइंट। फंक्शन क्या है इनका, जैसे आपके नी जॉइंट पे है तो वो मसल्स के डायरेक्शन को जो है वो अल्टर करेगी जिससे कि आपको फ्रिक्शन मिनिमाइज हो, है ना। तो पटेला आपकी एक बोन है जो सिसामेड है, जो लार्जेस्ट सिसामेड बोन है, सबसे बड़ी सिसामेड बोन है आपकी ये। ठीक है, और कौन सी सिसामेड बोन है आपकी बॉडी में? एक तो बताई थी मैंने आपको, जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ऐसे, तो कौन सी बोन मुझे फील हो रही है, कौन सी बोन मुझे फील हो रही है? जैसे मैं अभी इस तरह से खड़ा हूँ अभी, तो मुझे कौन सी बोन, कार्पस में से कौन सी, कार्पल में से कौन सी होगी? यहाँ पर कौन सी बोन है? इसके फोर थोड़ा लैटरल है, मीडियल कौन सी आएगी? प्रॉक्सिमल रो में पीसीफॉर्म बोन इज अगेन द सिसामोइड बोन। ठीक है ना। देखो अब ये आपने बोला कि सर ये मसल्स का टेंडन में डेवलप होती है, तो विच मसल्स टेंडन्स डेवलप द पटेला एंड विच मसल्स डेवलप द पीसीफॉर्म? कौन सी मसल्स है? सिसामोइड है। नहीं, ये भी आपको हाँ नहीं मिलेगी, ये भी आपको, यू कैन फील। नहीं, ओसिफाइड मतलब बोली थी कि इनके अंदर ओस्टियोजेनिक सेल्स तो मिलेगी लेकिन बल्कि आपका फॉर्मेट मतलब वो फॉर्म नहीं होगी वो। हाँ, इनके आसपास बस बिल्कुल बिल्कुल डेवलपमेंट पूरा डेवलपमेंट जी। और कौन सी बोन है फिर से, मैं पहले बताओ कौन सी मसल्स में डेवलप होगी पटेला? क्या नाम है उसका? ये पकड़िए, कौन सी मसल्स है आपकी? पूरा नाम तो बता। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, मसल्स का नाम है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। क्वाड का मतलब 4, सेप्स का मतलब हेड, तो 4 हेड वाली मसल्स है आपकी थाई के अंदर। जैसे आपके यहाँ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है ना, 2 हेड एंड 3 हेड, वैसे आपकी थाई में 4 हेड है, तो बोला क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के मसल्स के टेंडन से डेवलप होती है आपकी पटेला। ठीक है, वहीं जो पीसी फॉर्म होगी ये डेवलप फ्रॉम फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, मसल्स का नाम है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। पूछेंगे वाई में। कौन सी बोन नहीं होती? वो जुड़ती नहीं बेटा, वो मैं इसका लाऊंगा फिर बताऊंगा तेरे को एग्जैक्टली क्या है वो। ठीक है, एक और होती है सिसामेड बोन जो सब में डेवलप नहीं होती है, किसी किसी में डेवलप होती है वो है, इसका नाम है फेबेला। फेबेला, FABELLA, फेबेला। अब थोड़ा सा दिमाग लगा कि फेबेला है तो इससे मिलता जुलता नाम कौन सी बोन का है? फिबुला। तो फिबुला के यहाँ कौन सी मसल बताई थी मैंने यहाँ पे आपको? काफ मसल। कौन सी बताई थी काफ मसल? गैस्ट्रोक्नीमियस बताई थी, गैस्ट्रोक्नीमियस। तो उसका जो लैटरल हेड है, गैस्ट्रोक्नीमियस के 2 हेड है, लैटरल हेड एंड मिडिल हेड। तो लैटरल हेड के यहाँ डेवलप होती है क्योंकि लैटरल हेड की तरफ ही है ना आपकी, मिडिल हेड में तो टीबी आ जाएगी।
तो लैटरल क्या आपकी फिबुला है, तो लैटरल हेड के यहाँ डेवलप होती है फेबेला। Now the long bone, greater length than the width and slightly curved from the state, like a femur, tibia, fibula, humerus, ulna, radius, phalanges. Short bone is cube shape and nearly equal in length and width, is carpal and tarsal. And flat bone is thin and composed with two newly parallel plates of compact bone. Example is cranial, sternum, ribs, scapula. These are the all are example of flat bone. Now, what are the irregular bones? With the vertebral column, hip bone, just hip bone, some facial bone, और calcaneus. Calcaneus कहाँ होती है? Calcaneus कहाँ होती है? लास्ट ये वाली बोन, ये कहाँ होती है? टार्सल बोन कौन सी होती है? टार्सल्स का नाम क्या है? पैर में जो हड्डी है, जैसे कि यहाँ कार्पल है वहाँ टार्सल है, तो टार्सल का नाम क्या है? कैल्केनियस। जो आपकी हील बोन जो है ना, हील जिस पर आप चलते हैं अपन, जो इनिशिएट करते हैं ना, अब ये वाला हिल, ये हील बोन आपकी, ये वाली जो आप फील कर रहे हो ग्राउंड्स पे, दिस इज कैल्केनियस। फिर आएगी आप टेलस, टेलस, TALUS, टेलस। फिर नेक्स्ट आएगी आपकी नेविकुलर, NAVI, नेविकुलर, नेवी, नेवी, NAVI, नेविकुलर। देन कौन सी आएगी? क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। नींद आ रही है तो अलग बात है, तो लिख क्यों नहीं रहा है? मैं कब से देख रहा हूँ, तो बस देख ही रहा है, बस सुन रहा है। सुन भी रहा है कि नहीं रहा पता नहीं, हेडेक हो रहा है। और देयर आर 3 क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, CUNEIFORM, क्यूनिफॉर्म, CUNEIFORM। There are 3 cuneiform. Cuneiform is 3: medial, intermediate, and lateral. So these are 3. Fourth one is cuboid, fifth one is navicular, sixth one is talus, and 7 is calcaneus. So there are 7 tarsal present in your body. Medial, intermediate, and lateral. Medial, intermediate, and lateral cuneiform. Now the sesamoid bone you can see here. Protect tendon from excessive wear and tear, patella, foot and hand. फुट में भी है, लेकिन फुट की तो मैं उसको मानूंगा नहीं कि वो सेसामोइड बोन है, accessory bone. Basically these are the long bone, but you can see a miniature long bone. एक लॉन्ग बोन, एक मिनी छोटी लॉन्ग बोन है, छोटी है लेकिन लंबी है ना, ये phalanges. लिखा हुआ है, देखो ना क्या लिखा हुआ है. Length is wider, width equal, higher than the width, and flat bone लूडिया like a plate. प्लेट मतलब बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट बोन. जो बोन का स्ट्रक्चर है कैसे लगेगा? लाइक अ प्लेट. एक प्लेट ले ले और एक तो रोड ले ले, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? है ना? तो वो तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल आपकी कैविटी बना रही है. देखो जितनी भी फ्लैट बोन है ना, वो सारा कैविटी बनाने काम आएंगे. इस क्रेनियम है तो क्रेनियल कैविटी बना रही है,
स्टर्नम रिब्स स्कैपुला है आपका थोरेसिक कैविटी बना रही है ना। तो जहाँ जहाँ कैविटी बन रही है वहाँ वहाँ आपकी फ्लैट बोन है। वो सारी जो है वो शॉर्ट बोन में आएगी। एक्सियल में एज यू नो वेरी वेल स्कल वर्टिबल कॉलम इन विच यू हैव एम्बेडेड स्पाइनल कॉर्ड। नाउ यू कैन सी व्हाट आर द बोन्स। यू कैन सी इसको भूल गए थे आप। इंफीरियर नेजल कॉन्का। नाउ यू कैन सी मैं बताता हूँ स्कल के बारे में। दिस इज योर ऑर्बिट from where the eye is located. This is a nasal cavity. This is your frontal bone. This is your nasal bone. अंदर जाओगे आपको दिखेगी आप ब्लूइश कलर की वो लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल फोसा में यहाँ अंदर की तरफ लैक्राइमल ग्लैंड रहेगी जहाँ पर लैक्राइमल ग्लैंड बैठती है, यानी लैक्राइमल ग्लैंड की वैसे यहाँ रहती है लैक्राइमल फोसा में। तो लैक्राइमल कैनालिकुलर लैक्राइमल पंक्टा कंजक्टिबल सेक्स होते हुए यहाँ आती है। तो यहाँ आके जो है वो नेजो लैक्राइमल डक्ट देती है जो यहाँ ओपन होती है नोज में। हाँ नहीं उसके बीच में है अंदर, लेकिन बीच में वोमर दिख रहे हैं वोमर सीधी ये दिख रहे हैं अंदर वोमर। अंदर देखो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथेमोइड बोन, इथेमोइड बोन अंदर की तरफ है आपको और अंदर की तरफ। बाकी तो बता ही दिया आपने मैक्सिला नेजल क्रेनियम पता ही होगा फ्रंटल बोन, 2 पैरेटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 1 फ्रंटल बोन, 1 ऑक्सीपिटल, 1 स्फेनोइड एंड 1 इथेमोइड है ना। नाउ यू कैन सी द डायग्राम फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल स्फेनोइड यू कैन सी हियर। ये दिख रहा है आपको ये वाला दिस वन स्फेनोइड बोन ठीक है ना। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे देखो एच शेप सूचर बन रहा है एक एच शेप सूचर है ना। ये बताऊंगा मैं कल लेके आऊँगा इस कल तक परसों मंडे को। इसे बोलते हैं टेरियन, टेरियन इसकी इंपॉर्टेंस है क्लिनिकली इंपॉर्टेंस है इसकी। टेरियन पी साइलेंट है टेरियन है नाम इसका, जहाँ पर 4 बोन आके मिलती है टेम्पोरल स्फेनोइडल फ्रंटल एंड पैराइटल। क्योंकि इसी के अंदर ये आपकी आर्टरी होती है इसका नाम है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अंदर जो है आपने नॉर्मल सुना होगा ब्रेन हेमरेज सुना है। तो द ब्रेन हेमरेज इज कॉमनेस्ट इन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो अंदर की तरफ इस लेवल इसके अंदर की तरफ इस लेवल पे होती है। तो अगर हेड इंजरी होती है और ये अगर पार्ट टूटता है तो उसका केस जो है वो बेसिकली ब्रेन हेमरेज का ही रहता है। तो इसकी ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। और भी हैं काफ़ी, जैसे ये दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट जहाँ पर देखो ये टेम्पोरल बोन ऑक्सीपिटल बोन और ये पैराइटल बोन मिल रही है, इसे बोलते हैं एस्टेरियन एस्टेरियन। कल और डिस्कस करेंगे अपन इसके बारे में। एस्टेरियन की इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर सूचरल बोन बनती है, यहाँ पर सूचरल बोन एज इज एडवांस तो असेसरी बोन बनती है यहाँ पर, कॉमनेस्ट साइट है ये आपकी। नाउ फेस एज यू नो सब पता ही था अपने नेजल बोन मैक्सिला जाइगोमेटिक लैक्राइमल पैलेटाइन इन्फिनेजल कॉन्का वोमर मैंडिबल नेजल सेप्टम ऑर्बिट एंड फोरम। नाउ यू कैन सी द बेस ऑफ द स्कल। यू कैन सी हियर फर्स्ट इंसिसिव टिथ के नीचे आगे वो इंसिसिव फोरामिना। देन यू हैव हार्ड पैलेट, यू कैन सी हियर ये यू कैन योर हार्ड पैलेट वोमर बोन ठीक है। और उसके बाद देखो आपको ये मिल रही है जो ग्रीनिश जो ग्रीन में दिख रही है आपकी, ये आपकी है स्फेनोइड बोन जिसमें आपकी देखो 2 प्लेट दिख रही है आपको, एक ये ठीक है। इसका नाम है मीडियल एंड लैटरल टेरिगोइड ठीक है। फिर आपको देखो ये बीच में दिख रहा है आपको ये तो पता ही होगा क्या है ये फोरामेन मैग्नम और ये कॉन्डाइलर प्रोसेस फॉर एटलस है ना। बाकी फोरामिना दिख रहे हैं वो अभी आपको काम के नहीं है कि क्या पास होता है क्या नहीं है वो तो अभी MBBS वालों को भी पता नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं जिनके एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, उनको भी पता नहीं क्या पास होता है उसके अंदर से।
बट इसके अंदर से क्या पास होता है वो जरूर बताऊंगा मैं आपको, क्या क्या पास होगा इसके अंदर से। ये तो 99% जनता आंसर करती है स्पाइनल कॉर्ड। और अदर स्ट्रक्चर्स कौन से पास होंगे? फर्स्ट तो स्पाइनल कॉर्ड विथ इट्स मेनिंजेस। स्पाइनल कॉर्ड है तो मेनिंजेस भी जाएगी ना उसकी। तो फर्स्ट आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड विथ इट्स मेनिंजेस, है ना। एंड लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ लिगामेंट है जो यहाँ पर एक्सिस, एटलस एक्सिस और ऑक्सीपिटल बोन के साथ बनते हैं। वो लिगामेंट है, वो आपके नाम भी जरूरत नहीं है नाम की, मैं नाम लूँगा तो भूल जाओगे आप। ये मेम्ब्रेना टेक्टोरिया नहीं याद रहेगा आपको, एपिकल लिगामेंट डेंस नहीं याद रहेगा आपको, एलआर लिगामेंट नहीं याद रहेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट नहीं याद रहेगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ लिगामेंट विच आर पासिंग फ्रॉम ऑक्सीपिटल बोन टू द foramen magnum to the axis and atlas. The two arteries, there is a spinal artery, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, स्पाइनल आर्टरी भी सप्लाई करेगी ना उसको। तो देयर आर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, वो भी पास होगी यहाँ से। फिर आपकी एक नर्व है 11th क्रेनियल नर्व, उसका स्पाइनल, देखो 11th क्रेनियल का नाम क्या है? स्पाइनल असेसरी नर्व। तो उसका एक पार्ट स्पाइनल है, एक पार्ट असेसरी है। तो स्पाइनल पार्ट कहाँ से आता है? C1 C2 C3 C4 C5 से आता है। तो वो यहाँ से बन के अंदर जाता है फोरामेन मैग्नम से अंदर। और क्रेनियल पार्ट जो बनता है आपका वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के यहाँ से बनता है। दोनों पार्ट आके मिलते हैं, फिर जुगुलर फोरामेन, ये आपका देखो ये जुगुलर फोरामेन है, दिख रहा है ये वाला, ये देखो एरो कोई बोला हुआ है जुगुलर फोरामेन। तो यहाँ से अंदर गया, दोनों एक साथ हुए, स्पाइनल असेसरी पार्ट अलग हुए, एक साथ हुए, यहाँ से बाहर निकले, फिर से अलग हुए, स्पाइनल रूट और accessory root. Now this is the mandible, you can see the diagram, and you have a body and ramus, and in the ramus you have two processes, you can see here. This one is क्या स्टेज पास होता है वो अपने बनाना चाहिए, क्या डेमो होती है और ये बॉडी होती है मैंडिबल। तो वो प्रोसेस है, एक का ऊपर कॉर्नर पे, दूसरा कॉर्नर है। कॉर्नर प्रोसेस है वो जुड़ेगा ऊपर, इसको हम यहाँ पर ठीक है बिल्कुल मैंडिबल मैंडिबल यहाँ से जुड़ता हुआ टेम्पोरो मैंडिबुलर
Interpretics the bond between the body of the function is the strong joint, always movement of the vertebral column absorb vertical shock and consists body, vertebral arch and several processes to the point of rotation of muscle. You can see here, vertebral body of vertebral. That is the model vertebral. Even if you look at C7 which is T2. This would be the articular facet. ये पेडिकल पेडिकल क्या है वर्टिकल फोराmen सर्कस है क्या ट्रांसवर्स प्रोसेस मुझे बड़ी स्पीकर क्या है स्पाइन को फ्री करता है पीछे स्पाइन मुझे ना वर्टिकल स्पाइन को फ्री करता है इस तरह की स्पाइन को थोड़े से वर्टिकल डॉगवर्ड सर ये आज भी का ब्रेक ब्रेक करना है आप क्लास एंड करना क्लास 5 लोग क्लास सुनो पूरे क्लास में मैं ही कर दूँगा वरना आप क्या अपने इसका नाम भी ज़रूर articulation of this vertebra और इसमें जो है ट्रांसफर होते दिख रही है Okay.